بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں ڈاکٹر نوشی، میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ میرے والد کا ٹرانسفر گجرات میں ہوا تھا، مجھے بھی گجرات میں جانا پڑا۔ بہت جلد ہی مجھے محلے ہی کی کلینک میں نوکری بھی مل گئی۔ وہاں پر زیادہ سٹاف نہ تھا اور نہ ہی وہ ہاسپٹل بہت بڑا تھا، ایک چھوٹے سے علاقے میں بنایا گیا تھا۔ زیادہ تر وہاں پر زچگی کی عورتیں ہی آتی تھیں۔ جب میں نے وہاں پر باقاعدگی سے علاج شروع کیا تو مجھے پر اس ہاسپٹل میں ہونے والے بہت سے انکشاف کھلنے لگے۔ سب سے پہلے حیرت تو مجھے یہ ہوئی کہ وہاں کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر نہ تھی، بس ایک جینٹس ڈاکٹر تھا جس کے پاس عورتیں زچگی کے مسائل لے کر آتی تھی۔ اور وہ اس وقت تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک عورت زچگی کے درد سے بحال اس کلینک میں رات کے وقت پہنچی۔ میرے گھر اس محلے میں تھا۔ جب رات کے 1 بجے میں سے کلینک سے کال آئی کہ ایک عورت کا کیس بگڑ گیا ہے، جلدی سے کلینک پہنچے۔ میں چونک ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، اس لیے جلدی سے تیار ہو کر کلینک پہنچ گئی۔ سامنے لیبر روم میں اس عورت کی چیخیں چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں لیبر روم میں داخل ہوئی تو وہاں اس ڈاکٹر کو اس عورت کے پاس دیکھ کر مجھے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ بھلا کیسے اس کمرے میں آ سکتے تھے؟ وہاں نرسیں بھی موجود تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈاکٹر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، آپ یہاں سے جائیں، مجھے دیکھنے دیں، مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت اس لیبر روم میں اس ڈاکٹر کو دیکھ کر مجھے بس اس ڈاکٹر پر غصہ ہی آ چکا تھا۔ بھلا اس کا یہاں کیا کام تھا؟ میری سنجیدگی سے کہنے پر وہ ڈاکٹر وہاں سے باہر چلا گیا۔ میں نے اس عورت کو ہینڈل کیا۔ کچھ ہی دیر بعد نرسوں کی مدد سے میں نے ایک نارمل ڈلیوری کی تھی۔ یہ دیکھ کر بجائے ڈاکٹر خوش ہوتا، نرس سمیت مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے اس عورت کو وارڈ میں شفٹ کروا دیا تھا، کہا کہ اگلے روز شام تک وہ گھر بھی جا سکتی ہے۔ ابھی میں اس عورت سے ہی بات کر رہی تھی کہ جب نرس میرے پاس آئی، کہنے لگی، ڈاکٹر افضل آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں تو کارکردگی پر وہ خوش ہوگا، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے میں اجازت طلب کر کے داخل ہوئی، وہ غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، ساتھ ساتھ سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ کو ضرورت کیا تھی اتنا بڑا رسک لینے کی؟ سیدھا آپریشن کر دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، اسے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور ویسے بھی میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں، اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ میرے روکھے جواب پر اس ڈاکٹر کو غصہ آنے لگا تھا، لیکن ضبط کر کے کہنے لگا، آئندہ آپ وہ کریں گی جو میں آپ سے کہوں گا، کیونکہ تنخواہ میں نے آپ کو دینی ہے۔ میں نے تو اس شخص کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اسی لیے میں خاموشی سے اس ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ میں نے اس کلینک میں ہوتے دیکھا، وہ ایک روح کو لرز دینے والا عمل تھا۔ بہرحال بہت جلد میں نے تمام عورتوں کے کیس خود سنبھال لیے تھے، اور کوشش یہی ہوتی کہ عام ڈلیوری سے ہی بچہ پیدا ہو جائے، آپریشن کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ حالانکہ مجھے آپریشن کرنا آتا تھا، میں کئی آپریشن کر بھی چکی تھی، لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ڈاکٹر ہمیشہ مجھے آپریشن کی ترغیب دیتا تھا، کہتا، اس سے ہم زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ بہرحال میرا مقصد لوگوں کی مسیحا تھا، پیسہ میری ضرورت تھا، لیکن لالچ نہیں۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ والدین اپنی 9-10 سالہ بچی کو پیٹ درد کی شکایت کے لیے کلینک میں لے کر آئے۔ اس وقت میرے پاس کوئی بھی مریض نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بچی کا چیک اپ کر لوں، لیکن عین وقت پر ڈاکٹر آ گیا۔ کہنے لگا، آپ رات سے ڈیوٹی دے رہی ہیں، ایسا کریں کہ چھٹی کریں، اس کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ لڑکی کتنی خوبصورت تھی، جیسے کہ موم کی گڑیا ہو، سنہرے بال، گورا سفید رنگ۔ اس بچی کو دیکھ کر تو دل چاہتا تھا کہ اس سے بس دیکھتے ہی رہو۔ بہرحال میری ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی، اس لیے میں نے گھر جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ یہ چاہتی تھی کہ گھر جاتے ہی لمبی تان کر سو جاؤں۔ مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر نے اس لڑکی کو اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا، اور اس کے والدین سے کہنے لگا کہ آپ دونوں باہر رہیں، میں نے بچی کا تفصیلاً جائزہ لینا ہے، میں یہ کام اکیلے ہی کرتا ہوں۔ یہ کر کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ڈاکٹر کی یہ بات عجیب سی لگی، بھلا دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر میں اس سے پہلے بھی اسے عورتوں کے لیبر روم میں دیکھ چکی تھی، اس میں تو کوئی شرم و حیا تھی ہی نہیں۔ وہ بلا جھجک لیبر روم میں داخل ہو جاتا۔ جب سے میں آئی تھی، میں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اب لیبر روم میں نہ آئے، کیونکہ اس کا وہاں کوئی کام نہیں۔ میں نے نوٹ کیا تھا، مجھ سے میری ہر بات بری لگتی تھی، کہتا تھا، میں ابھی ڈاکٹر ہوں، آپ کے آنے سے پہلے میں ہی
सभी लेडी डॉक्टर के ना होने की वजह से उन्हें आपको दिखाना पड़ रहा था, लेकिन जब मैं हूँ तो फिर आपको वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बंद होता देखकर मैं ठटक कर रह गई। इससे पहले कि मैं कमरे में दाखिल होती, जैसे ही मैंने कमरे का नैब घुमाया, कमरा लॉक था। ये देखकर मुझे हैरत हुई कि आखिर कमरा लॉक क्यों है। अंदर से मुझे डॉक्टर की गरजदार लहजे में आवाज़ आई, जो कोई भी है यहाँ से चला जाए, मैं चेकअप कर रहा हूँ और दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मुझे डॉक्टर के लहजे और बात ने चमकाया था। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं हूँ डॉक्टर नौशी। और वो कहने लगा, आपको मैं छुट्टी बोल चुका हूँ, आप जाएं, मुझे डिस्टर्ब मत करें। मैं वहाँ से वापस लौटकर घर चली गई। मुझसे डॉक्टर की नज़रें और हरकतें अजीब सी लगी थी। मैंने अपने जहन को झटकाकर, हो सकता है कि ये मेरा एक ख्याल हो, लेकिन जब मैंने अगले रोज़ क्लिनिक में गई तो रात को ये बच्ची फिर से दर्द में बिलकती हुई वहाँ पहुँची। इसके माँ बाप बेहद परेशान थे। इनसे अपने रूम में ले गई, लेकिन जैसे ही मैं इसका चेकअप करने लगी, बड़ी उजलत से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब कहने लगे, इस बच्ची का मैं ट्रीटमेंट करूँगा, आप सिर्फ लेडी डॉक्टर हैं और लेडीज़ का ही टेस्ट किया करें। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने इस बच्ची का हाथ पकड़ा और साथ ले जाने का कहने लगा तो वो बच्ची सहमी सी गई। तो वैसे ही इसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। फौरी से दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ कर कहने लगी, मुझे इस डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे डॉक्टर से डर लगता है, मुझे नहीं जाना इसके साथ। लेकिन इसके वालिदैन कहने लगे, ये तो बहुत बड़ा डॉक्टर है बेटा, आपका इलाज कर देगा, दर्द ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि वो बच्ची मज़ीद कुछ कहती, डॉक्टर ने बड़ी कड़ी नज़रों से इसे घूरा था। लड़की वहीं सहम गई, लेकिन इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर मैं कुछ परेशान सी हुई थी। डॉक्टर इसे मेरे कमरे से बाहर ले गए। इसके वालिदैन भी जा चुके थे। मेरे पास एक दो ख़वातीन अपने रूटीन चेकअप के लिए आई थी। मैंने इन्हें चेकअप करके दुआ दी, अपने कमरे से बाहर निकली तो फिर ये देखकर मेरा दिल वसवसों की जद में आया था, क्योंकि कमरा आज भी बंद था। वो बच्ची कमरे में थी, वालिदैन कमरे के बाहर रखी कुछ कुर्सियों पर बैठे हुए थे। दोनों ही परेशान थे। बेटी की वालदा से पूछा कि आपकी बेटी के साथ मसला क्या है। कहने लगी, पता नहीं, चंद दिन पहले बुखार आया था तो मैं इसे यहीं लाई थी। डॉक्टर ने दवा दी, बुखार तो ठीक हो गया है, लेकिन पेट में दर्द शुरू हो गया है। कल भी दवाई लेकर गए हैं, पूरा दिन वो ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने पेट दर्द की चंद दवाइयाँ एक पर्ची पर लिख कर दी। वो कहने लगी, मैं ये सब आजमा चुकी हूँ, जब तक डॉक्टर से इंजेक्शन और ड्रिप नहीं लगाती इसका दर्द किसी चीज़ से ख़त्म नहीं होता। बात मुझे बड़ी अजीब लगी। ऐसा भी कौन सा दर्द था जो किसी भी दवा से फाका नहीं होता था, सिर्फ डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ही होता था। मेरे लिए सबसे ज़्यादा तफ्शीशनाक बात ये थी कि डॉक्टर कमरा क्यों बंद करके बच्ची को देखता है। बहरहाल आज मैं वहीं पर मौजूद रही, देखना चाहती थी कि डॉक्टर कितनी देर तक बच्ची को कमरे में रखता है। तकरीबन आधा घंटा तो हो चुका था। आधा घंटा मज़ीद मुझे इंतज़ार करना पड़ा। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, वो 10 साला बच्ची ने बेसाख्ता अपनी माँ को आवाज़ दी। वो रो रही थी, पसीने से शरबूर थी, चेहरे की रंग उड़ी हुई थी। डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीबोगरीब की मुस्कुराहट थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़कने लगा था। वो बच्ची बाहर निकलते ही अपनी माँ के साथ लगकर रोने लगी। इसने कहा कि देखें, ये मर्ज़ इसका बहुत पुराना है, अगर आप रोज़ इसे यहाँ लाएंगी तो जल्दी ये ठीक हो जाएगी। इसकी माँ बाप का डॉक्टर का शुक्रिया अदा करने लगे और दवाओं के पैसे देकर अपनी बच्ची को वहाँ से ले जाने लगे। मैं अभी तक यूं ही इस बच्ची को देख रही थी, जो अपनी माँ से लिपटी बार बार पलटकर डॉक्टर को देख रही थी और फिर सिस कर रो भी रही थी। इसके माँ बाप इसे यही कह रहे थे कि बस बेटा, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। एक नज़र मैंने डॉक्टर पर भी डाली, जो अगले ही पल अपने कॉलर झाड़ते हुए मुझे कहने लगे, आज कितने मरीज़ चेकअप किए पास आए और कितनी पेमेंट आज आपने वसूल की। क्योंकि ये छोटा सा क्लिनिक था, इसीलिए जो दवाइयाँ मेरे कमरे में पड़ी होती थी इसके पैसे मुझे ही मरीज़ से लेकर बाद में इस डॉक्टर को हिसाब देना होता था। ये सब कुछ बताने के बाद अपने घर चली आई थी, मगर इस रात मैं ठीक से सो नहीं पाई। बार बार इस मासूम बच्ची का रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। अगले रोज़ मैं अस्पताल गई तो वो बच्ची अब तक नहीं आई थी। मैंने यूं ही अपनी एक मरीज़ा को चेकअप कर रही थी, जब अब रोने की आवाज़ आई।
लगी ऐसी आवाज़ बखूबी पहचाती थी, क्योंकि इस बच्ची से मुझे एक अजीब सी हंसियत हो चुकी थी। मैंने जल्दी से पर्ची पर दवा लिखी और अपने कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही बाहर आई तो बाहर का मंजर देखकर तो मेरे कदम वही मंजमत हो चुकी थी। वो लड़की एक मरतबा फिर यहाँ आई थी, मगर बहुत रो रही थी। इसके वालिदैन ने इसे उठा रखा, वो तो इनके काबू में ही नहीं आ रही थी। रो रो कर कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना, मुझे डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवाना, मैं ठीक हूँ। मगर इसकी माँ तो अपनी बच्ची की ये हालत देखकर अंदर आते ही डॉक्टर को आवाज़ें देने लगी, डॉक्टर साहब जल्दी आए, देखें मेरे बच्ची को क्या हो गया है। इस बार डॉक्टर फौरी अपने कमरे से बाहर निकला, इनके पास आया, बच्ची को रोता देखकर कहने लगा, अरे अरे क्या हो गया है, तबीयत फिर से बिगड़ गई है। इतना कहकर डॉक्टर ने इस बच्ची को अपनी गोद में उठाना चाहा, मगर वो तो अपने बाप से मज़ीद लिपटी जा रही थी। कहने लगी, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे घर ले जाएं। इसने तो चीख चीख कर पूरे क्लिनिक को सर पर उठा लिया था। वो बेहद खौफज़दा थी। इसकी माँ कहने लगी, ये सुबह से बुखार में तप रही है, इसका कहना है कि इसके पूरे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा है, कल रात तो चक्कर खाकर गिर भी गई थी, सारी रात कैं करती रही है, मगर ये रट लगाई थी कि मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, खुदा का वास्ता है डॉक्टर साहब देखें मेरी बच्ची को क्या बीमारी है। इसकी माँ तो रोने लगी थी। डॉक्टर इस बच्ची को अपनी गोद में उठा चुका था, कहने लगा, फिक्र मत करें, अभी से इंजेक्शन और ड्रिप लगाऊंगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो एक मरतबा फिर इसे अपने कमरे में ले जा चुके थे और दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि मुझे भी अंदर आने दें, मैं भी इस बच्ची का चेकअप करना चाहती हूँ। इसे मसला क्या है, हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो आपकी जांच में ना आ रही हो। अगले ही पल मुझे एक ही जवाब मिला था कि डॉक्टर नौशी आप भूल रही हैं, मैं आपका सीनियर हूँ। इनकी बात सुनकर तो मैं एक मरतबा फिर गहरी सांस खारिज करके इस बच्ची की माँ के पास आ चुकी थी। कहने लगी, ये कोमल मेरी इकलौती बेटी है, खुदा ने इसके बाद हमें औलाद से ही ना नवाजा, यही हमारा बेटा है और यही हमारी बेटी है। हमने तो इसके बड़े बड़े ख्वाब देख रखे थे, बाहर की हवा तक बाहर की हवा तक ना लगने दी थी, मगर ना जाने इसे कौन सी बीमारी हो चुकी है। हम तो बेहद परेशान होकर रह गए हैं। मैंने बच्ची के माँ बाप को हौसला दिया, कहा कि फिक्र मत करें, आपकी बच्ची बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। हो सकता है इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो जिसका इन्फेक्शन इसके पेट में हो चुका हो, यही वजह है कि इसका दर्द होता है। मैंने दरवाजे पर नज़र डाली थी जो 40 मिनट से बंद था। दिल में तजस्सुस उभरा, फिर किसी तरह देखूं आखिर डॉक्टर कहाँ इलाज कर रहा है। सिवाय एक पर्सनल नर्स के इस कमरे में कोई भी आ जा नहीं सकता था। वहाँ से राहदारी से गुजरती हुई पिछले हिस्से में आई थी, जहाँ अमूमन ताज़ा हवा के लिए खिड़कियाँ खुली रहती थी। यही गुमान गुजरा कि हो सकता है जिस कमरे में डॉक्टर हो वहाँ का दरवाज़ा भी खुला हो, मगर जब जाकर देखा तो वो खिड़की वहाँ भी बंद थी। तो जैसे खिड़की कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला, वो बच्ची कमरे से बाहर निकल कर आ रही थी, मगर जो बात मुझे चौंकने पर मजबूर कर चुकी थी वो ये थी कि बच्ची लड़खड़ा कर चल रही थी, सहारे के बगैर, तो जैसे इससे 2 कदम भी और नहीं उठाया जा रहे थे। दरवाजे के पास आई, गोया अपनी वालदा को देखकर इसके सारे सब्र के बंधन टूट चुके थे और रोते हुए अपनी माँ को आवाज़ देने लगी थी। इसकी माँ फौरी अपनी बच्ची के पास पहुँची, इसे सीने से लगा लिया, फिर डॉक्टर से पूछा कि इसे क्या बीमारी है। तो डॉक्टर कहने लगा, दर हकीकत आपकी बच्ची के पेट में इन्फेक्शन हो चुका है, जिसका इलाज फ़कत तब ही मुमकिन है जब रोज़ाना बीमारी के इंजेक्शन लगाते रहें, जब जिससे दवाइयाँ देंगे ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और आपकी बच्ची बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगी। बच्ची के आंसू और चेहरे पर जो तासरात थे वो तो मुझे कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहे थे। इसके माँ बाप बड़े ही परेशान थे। एक मर्तबा फिर उसे उठाकर अपने साथ वहाँ से ले गए। जब डॉक्टर बड़ा ही मुतमिन था, मैंने सोच लिया था कि अगली मर्तबा मैं खुद जाकर इस बच्ची का चेकअप करवाऊंगी, बाकायदा इसका टेस्ट करवाऊंगी। डॉक्टर ने तो ना ही कोई टेस्ट करवाए थे, ना ही किसी डॉक्टर से मशवरा किया था। भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि शदीद इन्फेक्शन ना हो। इस बच्ची को कोई और ही बीमारी थी जो कि इसके लिए काफ़ी ख़तरा बन सकती थी। और इस रोज़ जब मैं घर गई तो आगे मेरी खाला आई थी। खाला को देखकर तो मैं खुशगवार हैरत में मुब्तला परेशानी गायब हो चुकी थी। हालांकि खाला के गले लग गई तो मेरे मुंह में मिठाई डालते हुए कहने लगी, बस बेटा बहुत रह लिया तुमने अपने अम्मा अब्बा के पास, अब खाला माँ के पास भी आ जाओ। कब तक अपने माँ बाप के घर ही रहने का इरादा
हालांकि ये बात सुनकर तुम्हें शर्मा सी गई। मेरी मंगनी 2 साल पहले मेरे खालाजाद से तय थी। अब खाला शादी करने के लिए आई थी। मेरी वालिदैन को भी कोई एतराज़ ना था क्योंकि खाला यहीं पर तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर रहती थी। मैंने खाला के सामने ये बात रखी थी कि मैं शादी के बाद भी जॉब करती रहूँगी। इस पर ना ही मेरी खाला को एतराज़ था, ना ही मेरे होने वाले शौहर को। हमारे घर में जल्दी ही शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, इसीलिए मुझे अक्सर अब क्लिनिक से छुट्टी पर रहना पड़ता था। मैंने जिस डॉक्टर को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा कोई ख़ास रद्द अमल नहीं दिया था। कहने लगे ठीक है, आप अपनी शादी एंजॉय करें, बाकी हमारे क्लिनिक के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप जब चाहें दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। इनकी ये बात सुनकर मैं भी मुतमिन हो चुकी थी, मगर जब तक वहाँ पर ड्यूटी पर रही दोबारा वो लड़की वहाँ पर नहीं आई थी, इसीलिए मैं भी मुतमिन हो गई कि वो लड़की ठीक हो गई है। बहरहाल मैं अपने कमरे में ही मसरूफियत में लगी पड़ी थी। 1 माह बाद मेरा निकाह था और मैंने 1 माह पहले ही छुट्टियां करना शुरू कर दी थी। मेरी शादी हालात के मुताबिक सादगी के साथ की गई थी। मैं शादी के फौरी बाद दोबारा से अपनी जॉब नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं अपने ससुराल वालों को वक़्त देना चाहती थी। ऐसा करते हुए मुझे तकरीबन 10 माह गुजर चुके थे जब एक रोज़ मेरे शौहर ने मुझसे खुद ही कहा कि तुम चाहो तो दोबारा जॉब कर सकती हो, घर के काम तो वैसे भी मुलाजमा कर दिया करती है। मेरी वालदा को भी इस बात से कोई ख़ास एतराज़ नहीं, तुम अपने ख्वाब पूरे करो। यही बात जब खाला ने भी की तो मैं अगले ही रोज़ दोबारा इस क्लिनिक पहुंच गई, क्योंकि वो क्लिनिक मेरे ससुराल से भी नज़दीक था। दोबारा क्लिनिक पर पहुंची तो एक मरतबा फिर वो खुशी दिली से मेरा इस्तकबाल किया गया। सब ने मुझे शादी की मुबारकबाद दी और एक मरतबा फिर मैं बतौर लेडी डॉक्टर यहाँ पर अपनी ड्यूटी संभाल चुकी थी। आज मेरा यहाँ पर पहला ही दिन था जब मैं 2-3 मरीज़ों को चेकअप करने के बाद जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई तो जो मंजर मैंने देखा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मुझे ठीक से याद था ये वही बच्ची है जिसे मैंने कई माह पहले यहाँ पर आते देखा था। वे कोमल ही थी, मगर यहाँ इसकी क्या हालत हो चुकी थी। इसकी माँ बड़ी मुश्किल से इसे सहारा दिए यहाँ ला रही थी। वो खूबसूरत बच्ची का तो हुलिया ही बिगड़ चुका था। इसका पेट फूलकर इस कदर बड़ा हो चुका था, ऐसे लगता था जैसे वो 9 माह की हामला औरत हो। इससे बेसाख्ता इस बच्चे पर तरस आया। फिर इसके पास गई और कहने लगी ये क्या हो गया है इस बच्ची को, इसका पेट इस कदर कैसे फूल गया। इसकी माँ तो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए रोने लगी। कहने लगी ये पता नहीं मेरी बच्ची को कौन सी बीमारी है, डॉक्टर कहता है इसके पेट में रसौली है, पेट में पानी भर चुका है, यही वजह है कि मेरी बच्ची इस नौबत को पहुंच चुकी है। ये देखकर तो मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। इस वक्त डॉक्टर किसी और मरीज़ को देख रहा था। मैं बच्ची को अपने साथ अपने कमरे में ले आई और बेड पर लौटा दिया। बच्ची की माँ भी मेरे साथ ही मौजूद थी। वो मुझे तमाम तफसील बता रही थी। जब मैंने बच्ची के पेट पर हाथ रखा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी। कहने लगी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इस बच्ची की जांच करने के बाद सोचा कि इसका अल्ट्रासाउंड करूं। मैंने इस बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया तो मेरे तो जैसे सांस हलक में ही रुक चुकी थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से वाज़िया तौर पर मुझे ये खबर मिल चुकी थी कि ये बच्ची 9 माह की हामला है और इसके पेट में 2 जुड़वां बच्चे सांस ले रहे हैं। मुझे इस कदर परेशान देखकर इसकी माँ भी हड़बड़ा चुकी थी। कहने लगी क्या हुआ मेरी बच्ची को, खुदा का वास्ता है बताएं मेरी बच्ची को क्या बीमारी है। मेरा जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। 10-11 साल बच्ची हामला कैसे हो सकती है, मैं घबरा गई। और जब इसकी बच्ची को माँ का पता लगा, इसकी बेटी ने 9 माह से हामला है और कुछ ही वक्त बाद ये 2 बच्चों को जन्म देगी, क्योंकि मुद्दत पूरी हो चुकी थी। ये सुनकर तो इसकी माँ वहीं बेहोश हो चुकी थी। पूरी क्लिनिक में तो जैसे शोर मच चुका था। वो बच्ची दर्द से तड़पने लगी थी। शायद वक्त करीब आ चुका था। मैंने इस बच्ची को फ़ौरन लेबर रूम में लाया। डॉक्टर भी परेशान था। कहने लगा ये कैसे मुमकिन है, आपको गलतफहमी हुई होगी, इसके पेट में सवाए रसौली कर कुछ भी नहीं। डॉक्टर का तो बस नहीं चल रहा था कि मेरा गला ही दबा देता, मगर मैं फट पड़ी थी। कहने लगी कि जाएं यहाँ से, मुझे अपना काम करने दें। बार बार अपने चेहरे का पसीना साफ कर रही थी। जिस तरह बच्चे की हालत थी मुझे नहीं लगता था कि ये बच पाएगी। मैंने इस बच्ची का ऑपरेशन किया, जिसके बाद इसने 2 जुड़वां बेटों को जन्म दिया, मगर वो अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। वो दोनों बच्चे बेहद कमज़ोर थे।
इन्हें लाकर इन्हें दिखाया और ये खबर सुनाई कि इनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। वो दोनों माँ बाप तो दाढ़े मार मार कर रो रहे थे। आखिर किसने हमारी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की थी? कौन था वो? मेरा तो सारा शक डॉक्टर पर था, मगर जिस कदर वो इस वक्त खुद को नॉर्मल किए हुए था, मैंने जो सोचने पर मजबूर हो गई, कहीं इस बच्ची के घर का ही शख्स ना हो। बच्ची के वालिदैन इस बच्ची को वहाँ से ले गए। कहने लगे हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो बच्चे भी चंद घंटा जिंदा रहने के बाद वफात पा चुके थे। मगर इस पहले मैंने डॉक्टर और इस नर्स को घबराते हुए कमरे में जाते देखा था। जैसे ही वो नर्स डॉक्टर के कमरे से बाहर निकली तो मैं इसे पकड़कर अलग ले गई और धमकाते हुए पूछने लगी कि बताओ आखिर सच क्या है? ये सब कुछ इस बच्ची के साथ इस डॉक्टर ने ही किया है ना? इसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि मैं सच कह रही हूँ। वो पहले तो मना करती रही, मगर जब मैंने इसे धमकाया तो मजबूरन सच बोलने पर मजबूर होगी। रोने लगी, कहने लगी मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए डॉक्टर साहब ने मुझे थपका कर रखा था। इस बच्ची के साथ नामनासिब हरकतें करते, गलत नज़रों से देखते, जहाँ तक इसके साथ बदकारी भी करती और यही की कहा कि खबरदार जो किसी को कानो कान खबर भी लगने दी। वो रो रो कर बता रही थी, जबकि मैं तो गुस्से से फट पड़ी थी। अगले ही पल मैंने अपने शौहर को कॉल की थी। मेरा शौहर हेमंत पुलिस ऑफिसर था। कुछ ही देर बाद वहाँ पर आ पहुँचा था और फिर बाकायदा बयान के साथ इस डॉक्टर को पकड़ लिया गया। बच्चों का DNA करवाया गया तो वो इस जालिम सफाक डॉक्टर ही से मैच हुआ था। इस डॉक्टर को जब पुलिस ले जाने लगी तो कोमल की माँ ने अपने पैर से चप्पल उतार कर इसके डॉक्टर के मुंह पर मारी थी। मेरा शौहर बजाते खुद सख्त से सज़ा दिलवाने के लिए खुद तहकीक कर रहा था। वालिदैन को कभी भी अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि सारे साए की तरह साथ रहना चाहिए। बाज़ दफ़ा यही